Good morning, children. Today we will solve the end of the chapter exercise of NCERT of chapter Light. Now we will start with question number 1. Which of the following cannot be used to make a lens? So when we did the definition of lens, we did that lens is made up of some transparent material. Okay, lens is made up from some transparent material. Now out of these, water is a transparent, yes. Glass is a transparent, yes. Plastic somehow it is transparent, but clay, it is not transparent at all. So we cannot use clay to make a lens because it is not transparent. Now next is the image formed by the concave mirror is observed to be virtual, erect and larger. Concave mirror के में you will get virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Now try to remember in which case you made the diagram of concave mirror when it was showing the virtual and erect image. Now if I'll show you the diagrams of concave mirrors, now you can see that in the concave mirror we draw the 6 cases. Yes, we draw the 6 cases. Now out of those 6 cases, where you can find that the concave mirror is showing which kind of image? Concave mirror is showing virtual and erect image. If anybody remembers, that was the last case, isn't? That was the last case. Let me draw it. That was the pole and focus. Yes. Behind the mirror, isn't it? This was the last case, that is between pole and focus of the mirror. The next is where should be the object be placed in the front of convex lens to get a real image of the size of the object. कहाँ पर रखें कि same size of image आए? If anybody can tell, like see, we have done the 6 diagram. Yes or no? We have done the 6 diagrams in lenses. In which case you can get the same size. Now I am showing you the, see, case 1, case 2, diminished image, point size image, and it is same size. Where you place the object? At 2f, means twice the focal length. So what will be the answer? At twice the focal length. Now next is a spherical mirror and the thin spherical lens, each of focal length -15. The mirror and lens likely to be. अब देखो माइनस है ना फोकल लेंथ. Concave mirror has negative focal length and concave lens also has negative focal length. So both are concave. Now next is no matter how far you stand from the mirror. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूर हो, your image appears erect. किस केस में you always get a erect image? इरेक्ट मतलब सीधी, प्लेन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, इधर प्लेन और प्लेन मिरर में तो डेफिनेटली यू गेट अ इरेक्ट इमेज, बट कॉन्वेक्स में भी वी डिड द 2 केसेस एंड बोथ द 2 केसेस यू गेट द इरेक्ट इमेज. 2 ही केस किए थे हमने कॉन्वेक्स मिरर में और दोनों में कैसी थी? इरेक्ट इमेज. सो प्लेन में भी इरेक्ट इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में भी. सो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज यू विल प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स के लिए पढ़ने के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे? जिसकी फोकल लेंथ, देखो स्मॉल लेटर्स पढ़ना है मीन्स पावर शुड बी हाई. पावर शुड बी हाई. वी नो द फॉर्मूला पावर इज़ 1/f. तो जिसकी पावर हाई होगी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम. किस लेंस की पावर ज़्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम है, बिकॉज पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. अब देखो, अब लेंस कौन सा यूज़ करेंगे सबसे पहले बताओ. छोटे को बड़ा देखना है आपने, यू वांट टू रीड द स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स को आप बड़ा करके देखना पढ़ना चाह रहे हो, तो विच लेंस यू विल यूज़? फर्स्ट थिंग you will use convex lens because convex lens gives you the bigger image. Now which you will use out of these two? Which has a small focal length? Which has a small focal length? This one. So C option is correct. That is a convex lens of focal length 5 meter, as it has less focal length. Now we wish to obtain a erect image of an object using a concave mirror of focal length 15. What should be the range of the object in front of the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller? Draw a ray diagram.
वी विश टू इमेज गॉट अ इरेक्ट इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. कब बनती है इरेक्ट इमेज? अभी मैंने बताया था आपको. इरेक्ट इमेज कब बनाता है कॉनकेव मिरर? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. सो आपने पोल एंड फोकस वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके, यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ड्रॉ द डे डायग्राम है ना, तो विच डायग्राम यू विल ड्रॉ? बिटवीन द पोल एंड फोकस. नाउ सी द नेक्स्ट. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ द कार एंड गिव द रीजन. कौन सा मिरर यूज होता है हेडलाइट्स में? कॉनकेव मिरर. हाउ कैन आई शो? यू विल ड्रॉ विच डायग्राम कॉनकेव मिरर के लिए? हेडलाइट्स में. हेडलाइट्स में यू मस्ट हैव सीन द लाइट रेज गोज टू अ लार्ज डिस्टेंस. तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके फोकस पर बल्ब को रखते हैं. ओके, यहाँ से रे गई, यहाँ से रे गई, टकराने के बाद इट बिकम्स पैरेलल. सो हेडलाइट शोज दिस काइंड ऑफ. नेक्स्ट इज रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर में आपको कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है. और कौन सा मिरर स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है? डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट. सीधी भी दिखाई देती है, उल्टी तो नहीं दिखाई देती ना साइड मिरर में. तो डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट, ये हमने जब एप्लीकेशन की थी ना कॉनकेव कॉन्वेक्स की, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. सो वेरी विच मिरर यू विल यूज? कॉनवेक्स मिरर. वाई कॉन्वेक्स मिरर? बिकॉज नंबर 1 इट गिव्स अ diminished and direct image. Number 2 it has a large field of view. Large field of view means this is a convex mirror. When the parallel rays come, because you want to see the distance object at the large distance, so parallel rays you will use. Here it will strike and it is spreading. So it is spreading. It has large view. देखो इतना कितना कवर कर, इतना एरिया ये कवर कर लेगा. ऐसे आएगी, इतना एरिया कवर करे. दैट्स वाई इट हैज़ अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू. नाउ थर्ड इज सोलर फर्नेस. सोलर फर्नेस में यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट द लाइट एट वन प्लेस. दैट मीन्स सनलाइट को आपने एक जगह फोकस करना है. सोलर फर्नेस मतलब आपको सारी लाइट एक जगह चाहिए, तभी तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे कुक कर पाओगे या हीट कर पाओगे. दिस केस यू विल यूज. ओके, सो विच मिरर you will use? Convex mirror, as it concentrate lights into a small. Concave mirror will come. It's not a convex. It is concave mirror will come. Okay, concave mirror will come as it concentrate the light at the. Okay. Here concave mirror will come. Now next is one half the convex lens is covered. अगर वो कहता है आधा हम कवर कर देते हैं, will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your experimentally you can't do. Explain your observations. See, we will draw the diagram. Which diagram? I am going to make the diagram here. मैंने हाफ ऑफ द लेंस को यहाँ से क्या कर दिया, कवर कर दिया विद ब्लैक पेपर. आई एम प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट हियर. इट पास फ्रॉम फोकस. अनदर एक गो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ से थोड़ा सा लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होते पर फिर भी ये पास हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म ए इमेज हियर. तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन तो जाएगी. येस, इट विल डेफिनेटली फॉर्म ए इमेज. क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लाइट ब्लॉक हो रही है तो यहाँ पर जो आपके पास इमेज बनेगी ना, उसकी इंटेंसिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज नहीं होगी. उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मल इमेज की इंटेंसिटी से कम होगी. इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस. इंटेंसिटी होता है कितनी क्लियर इमेज बन रही है. नो नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर मीन्स आपको क्या दे रखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है. दैट इज़ बी HO. इसको हम O भी दे सकते हैं. इस प्लेस 25 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25. और U हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हमेशा क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं. ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव. तो F इज़ +10. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म. आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. सी हियर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, फोकल लेंथ 10 है ना, तो ये 20 मतलब यहाँ पर रखा. आपने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड 2F. तो बियॉन्ड 2F वाला डायग्राम बनाओगे. ये 10 हो गया, ये 20 हो गया. U कितना था आपके पास, 25 था ना, तो मतलब आपने 20 से पीछे रखा हुआ है. 20 से पीछे रखा मतलब ये 2F था, F 10 है, 2F 20 हो गया, तो 20 से पीछे मतलब बियॉन्ड 2F. तो कॉन्वेक्स लेंस में जो बियॉन्ड 2F वाला डायग्राम है ना, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होता है तो आप वो वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे इसमें. नेक्स्ट इज अदरवाइज़ यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो. अगर आपने कैलकुलेट भी करना है डायग्राम से भी कर सकते हो. डायग्राम भी कहा उसने और कैलकुलेशंस कैसे करेंगे. नो 1/v लेंस फॉर्मूला वी नो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. तो 1/v इज 1/u को इस तरफ ले जाओ, 1/f ये इधर चला जाएगा, 1 + u, 1/10. f इज़ 10, u क्या था -25. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू कैन गेट द आंसर. v इज इक्वल टू +16.67. यू कैन सॉल्व इट. नाउ
For magnification, you know the formula of magnification, m is equal to size of image by size of object is equal to v by u. o आपको पता है, v आपको पता है, u आपको पता है, that is -25. तो you can calculate I from here. I is 0.5, v is 16.67 and u was -25. So when you will solve this, it will come -3.3 centimeter, means it will be giving you inverted image. I नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड. वो आपने ऑलरेडी डायग्राम में आपको पता है ना. नेक्स्ट इज अ कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ. कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव. फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर. तो क्या गिवन है, वी. किस तरफ गिवन होता है आपको पता है. कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा इमेज किधर बनती है, इधर बनती है ना. तो वी क्या होगा, नेगेटिव. हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, मतलब यू निकालना आपको. ड्रॉ द रे डायग्राम. रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो कॉन्केव लेंस का, ये वाला. और दूसरा आपके पास फर्स्ट केस है ये, और दूसरा आपके सेकंड केस है आपके पास कॉन्केव लेंस का ये. और दूसरा आपने मैथमेटिकली निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला भी नो, 1/v माइनस 1/, इक्वल टू 1/f 1/u आपको निकालना है. v के आपके पास -10 इज इक्वल टू दिस -15. 1/u इधर जाके क्या बन जाएगा, -1/15. इट विल बी 1/u प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/50. सो 1/u बन जाएगा आपके पास -1/15 -1/10. ओके, you can solve it. Now u is -30. The next question is, an object is placed at a distance 10 सेंटीमीटर. तो u कितना है, -10. u is always negative. कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव. f is 15. यू हैव टू फाइंड आउट v. पोजीशन निकालनी है, v निकालना और नेचर बतानी. v निकालो, मिरर फॉर्मूला यूज़ करो, मिरर है नहीं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/v आपको निकालना है, इधर जाके -1/u हो जाएगा. 1/f की वैल्यू पुट करो, f is 15, माइनस u की जगह पुट करोगे -10. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, इट विल कम v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर. नेचर निकालने के लिए आप क्या निकाल सकते हो, -v/u. ओके, माइनस v कितना आपके पास 6, u कितना है -10, 0.6 प्लस 0.6 आ रहा है. m पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नो नेक्स्ट इज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है आपको पता है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर. इफ़ यू नो द रे डायग्राम, रे डायग्राम में देखना, कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस बिहाइंड द मिरर बनती है. ना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज़ 1, मीन्स m इज इक्वल टू 1 होता है प्लेन मिरर के केस में, +1. तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, v अपॉन यू. मिरर्स में क्या होता है, v अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1, मीन्स v इज इक्वल टू यू. और यू कैन राइट m इज इक्वल टू +1 है. m का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ 1. अगर I/O 1 है तो मीन्स I इज इक्वल टू O है. येस और नो, तो मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और +1 का यहाँ क्या, प्लस शोज दैट m पॉजिटिव या नेगेटिव शो करता है वर्चुअली इरेक्ट इमेज है कि रियल इन्वर्टेड है. अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअली इरेक्ट, अगर m नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड. अब क्योंकि m पॉजिटिव है तो इट विल बी वर्चुअली इरेक्ट इमेज. अब m 1 है, m 1 होने का मतलब है I/O 1 है, तो मीन्स I इज इक्वल टू O, मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, O गिवन है आपको, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. u कितना गिवन है, -20, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r गिवन आपको 30. r 30 है तो r f का फॉर्मूला क्या होता है, r/2. f कितना आ जाएगा, 30/2 इज 15. अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो f क्या हो जाएगा, +15 सेंटीमीटर. ओके, ना u गिवन है, f गिवन है. यू कैन फाइंड आउट v, हाउ, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, बिकॉज इट इज़ मिरर. सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v 1/f माइनस 1/u, 1/v 1/f की जगह 15, माइनस u की जगह यू विल पुट -20. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, 1/15 प्लस 1/20, आई टोल्ड यू वन मेथड, v इज इक्वल टू 1/v. अगर ये होता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 15 × 20 डिवाइडेड बाय 15 + 20, दैट इज़ 300/35. ओके, you can solve like this also. Now you have to find out the what,
नेचर एंड साइज़ भी निकालना है, तो नेचर एंड साइज़ के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे I बाय ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आई आपको निकालना है, ओ आपको गिवन है 5 माइनस वी कितना आपके पास, व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो इट विल बी 300/35 और यू कितना आपके पास, यू इज़ -20, तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इट विल 2.1। आई कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ओ गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, यू कितना है -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। जब भी आए ना क्वेश्चन में शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन पर इमेज बनती है, स्क्रीन पर क्या बनती है, इमेज। तो वो पूछ रहे हैं स्क्रीन कहाँ रखेंगे, तो मीन्स बेसिकली दे आर आस्किंग वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, so you have to find out v from here. Now u given, f given, you can find out v from the help of mirror formula. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. It will come plus over here. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So 1 by v will be 1 by f minus 1 by u. So when you will solve this, 1 by v, 1 by f minus 1 by u, f is -18 minus u is -27, so it will be -1 by 18 plus 1 by 27. So when you will solve this, 18 17 का LCM लो पहले आप, 54 -3 -1 by 15 4, तो v कितना आ जाएगा आपके पास -54, v आ जाएगा आपके पास -54। ओके, सो v आ गया आपके पास -54। सो यू कैन फाइंड आउट 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू, यहाँ से शुरू कर लेना आप, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ, बिकॉज इट इज़ अ मिरर फार्मूला। सो 1 बाई वी इज़ 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ इज़ -18, एफ इज़ -18 गिवन टू यू, यू इज़ -27, माइनस माइनस विल बी प्लस, व्हेन यू विल सॉल्व दिस 54 it will be -54 centimeter. So you have to find out n over here. M is I by O, that is equal to minus V by U. So आपको I निकालना, I is equal to O into minus V by U. O आपके पास है 7 और माइनस V कितना आपके पास -54 हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और U कितना आपके पास -27. So it will be 2, 27 2 सा, so -14 centimeter. So it is a inverted image. माइनस आ रहा है ना I, तो it will be your inverted image. Now see the next question. Find the focal length of a lens. पावर दे रखी है आपको, पावर का फॉर्मूला क्या था 1 by f, तो पावर अगर आपको -2 दे रखी है तो f क्या जाएगा 1 by -2, दैट इज़ 0.5 मीटर्स। अब क्योंकि f पावर नेगेटिव है, तो जिसके पावर नेगेटिव उसका f भी नेगेटिव, और किसका f नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट इज और डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ 15 डायोप्टर। डॉक्टर ने क्या कहा है, 15 डायोप्टर, सॉरी प्लस 1.5 डायोप्टर है। प्लस डायोप्टर मीन्स कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, मीन्स कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय पावर 1/1.5, वी विल सॉल्व दिस। और कैसा लेंस है, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। The next is, so this was all about the NCERT exercise we have done. Okay, do it in your notebooks. Thank you.